Hi, hi everybody. Today we are going to start a session on male reproductive system. And in male reproductive system, specifically, we are going to discuss the erection and ejaculatory response. In this, what probably let's discuss about the anatomy of the male reproductive system first. Let's understand the basics, and then we get into the details of how the erection and ejaculatory response happens. What you're seeing is penis, which is, I think, everybody knows. So in this. There is something which is inside through which urine comes, no? So we know that this is urethra, and along with urine, semen also comes from the same side, right? So how does that happen? So this is the scrotum, scrotum, in which you have testis inside, and these things which you're seeing is called as epididymis. So the spermatogenesis actually happens here. So the sperm production, the spermatogenesis is happening here. So ultimately, this is how the sperm travels through this. And this orange area which you're seeing is actually prostate. And this whitish thing which you're seeing on this is seminal vesicles. So these seminal vesicles are actually responsible for production of semen. So the fluid here and the sperms from the scrotum ultimately travels down through this which we were seeing, tuck here, and through this which is prostatic urethra. From this, and then it comes to penile urethra, और यहाँ से then it goes out, and this is how the typical kind of ejaculation happens. And this, what you're seeing here, is urinary bladder. So we'll discuss about how things work, and I thought, like, initially we should understand the basic anatomy of the male reproductive system. Now, how the erection happens. So erection ke liye, so what we know is, see, there are certain kind of stimuli that we need, right? So what happens is, it can be either sight, so you see something and then you get these. So the overall arousal happens by what all things? Sight, smell, touch, right? So the sight, smell, just the mere sight of it, that usually activates the central stimulation. And touch is mainly the local stimuli, right? So touch is mainly the local stimuli. So here the hypothalamus, or let's say the brain axis, works, and through which the dopamine pathway gets activated, and you get the erection happening at the local level. And also there is one more important thing. So overall in the nervous system, we have got two type of nervous system. So one is somatic, and the other one is autonomic. So in the autonomic nervous system, you have sympathetic system and you have parasympathetic system. So one thing which you all have to remember is that parasympathetic system is responsible for erection. So this is important for us to remember. And sympathetic nervous system is responsible for ejaculation. Okay, so here what you're seeing is sympathetic nerves, and these are parasympathetic nerves. So parasympathetic nerves typically are originating from ST to S2 to S4 sacral regions, and sympathetic is for T12 to L2. Now, as you remember, sympathetic is mainly for ejaculation and parasympathetic for erection. So whenever there is sight, smell, or the tactile stimulus happening, here what you're seeing is pudendal nerve, which is a local supplier to the region. We'll discuss more in coming slides. So what is important now? Again, understand that arousal, sight, smell, or touch through the central nervous system, there is a dopamine pathway which is leading to erection, and also at the same time parasympathetic nerve system, which is supplying to the whole penis area, is responsible for erection, and sympathetic nervous system is responsible for ejaculation. Now before that, let's say a person is sitting before the arousal, so the sympathetic nervous system is activated, and that is keeping the penis in the फ्लैसिड स्टेट, और लेट्स से कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो उसे फ्लैसिड स्टेट में रख रहा है. फ्लैसिड स्टेट का मतलब है कि अभी कोई इरेक्शन नहीं हुआ है. सो व्हेनेवर देयर इज
any kind of arousal stimuli. तो typically होता क्या है कि sympathetic nerve system inhibit हो जाता है and parasympathetic nerve system activate हो जाता है. So the parasympathetic nervous system will lead to erection. This is something I think which is clear to us. Now there is something we also need to understand the basic anatomy of penis to understand before we go into the mechanism of action, that how that happens. एक basic understanding लगते हैं. So penis को अगर हम ऐसे करके कट क्रॉस सेक्शन करेंगे तो अंदर का क्या दिखेगा, है ना. So जो बाहर, सबसे बाहर जो लेयर होती है पेनिस के, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया. So tunica albuginea is something which is this one, this. So tunica albuginea एक आउटर शीथ होती है जो ये दिख रही है ना, ऐसे इसे tunica albuginea बोलते हैं. ठीक है. अभी ये है इधर ऊपर राइट हैंड साइड में, दिस वन इज फ्लैसिड, मतलब अभी इरेक्शन नहीं हुआ, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको यहाँ दिख रहा है वो है इरेक्टाइल स्टेज में. नाउ जो ये पिंकिश जो शीथ दिख रही है, ये जो कोलेजनस टिश्यू, इसको कोलेजनस टिश्यू बोलते हैं. दिस इज कॉर्पस कैवर्नोसम. सो दिस इज कॉर्पस कैवर्नोसम जो यहाँ लिखा हुआ है, ये कॉर्पस कैवर्नोसम है. और ये जो है छोटा इसके नीचे, ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. दिस वन इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. और इसके अंदर यूरिथ्रा होती है. सो व्हाट यू सीइंग हियर इज यूरिथ्रा. Right. So corpus spongiosum and these two kind of two eyes kind of a thing, these are corpus cavernosum. अब इसकी blood supply समझते हैं. blood supply ज़रूरी है क्योंकि erection is all about blood supply and nervous supply. Now blood supply में ये जो अंदर जो artery है, this what you're seeing is actually cavernosal artery. ये जो cavernous artery यहाँ लिखा हुआ है, cavernous artery is actually a branch of pudendal artery. Okay, so cavernous artery ये हो गई, ये कॉर्पस कैवर्नोसम हो गया, ये हमारा यूरिथ्रा हो गया, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम हमने बात करी. ना ऊपर इसके जो वेन दिख रही है जो ब्लू वाली, ये दिस वन, दिस इज अ डीप डॉर्सल वेन. Okay. So now see, what you can actually see, which is very evident in this picture is, ये जो ऊपर वाला अभी आप देखोगे ये फ्लैसिड स्टेट में. इसका मतलब क्या है, स्मूथ मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है. ओके, सो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है अभी. सो कॉन्ट्रैक्टेड स्मूथ मसल्स हैं. ये जो आपको दिख रही है पूरा टाइट स्ट्रक्चर है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो रखी है. सो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है, तो वो एक फ्लैसिड स्टेट है. जैसे ही इरेक्शन होता है, इरेक्शन अगेन रिमेंबर हम बात कर रहे थे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की. सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब सप्लाई करेगा, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी हम देखेंगे, तो उसके वजह से क्या होगा कि इरेक्शन पाथवे हमारा शुरू होगा. तो सबसे पहले क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी. सो स्मूथ मसल्स क्या है, अभी अंदर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है और ब्लड वेसल सप्लाई नहीं है. अभी जो नीचे देख रहे हो इतना एंगोर्ज जो पेनिस है, ये क्या है, ये देखो पूरे में ब्लड वेसल्स भरी हुई है. मतलब क्या हुआ कि स्मूथ मसल्स डायलेट हो गई. सो स्मूथ मसल्स डायलेट हो जाती हैं, और डायलेट होने के बाद जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है. तो ब्लड सप्लाई जब बढ़ेगी और आपकी कैवर्नोसल आर्टरी के थ्रू जितने भी स्मॉल आर्टीरियोल्स हैं उस सब में ब्लड सप्लाई भर जाएगी. सो ये एक इरेक्शन में सबसे पहला काम होता है. अभी ये मेंटेन कैसे रहेगा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आर्टरी ब्लड को लेके आती है और वीनस जो वेन्स होती हैं वो वहाँ से वापस हार्ट की तरफ लेके जाती हैं. तो एक बार जब एंगोर्ज्ड हो जाता है, जब इतना एंगोर्ज हो जाता है, तो इसके साइड में जितनी भी वेन्स है, ये जो आप ब्लू में ये सारी देख रहे हैं, दीज आर ऑल एमिसरी वेन्स. क्या होता है, ये एमिसरी वेन्स कंप्रेस हो जाती हैं, दीज आर टाइटली कंप्रेस्ड. उसकी वजह से वो होल्ड रखता है, वहाँ पर खून जमा रहेगा. तो जब तक इरेक्शन रहेगा तब तक एमिसरी वेन्स को वो इतना कंप्रेशन होता है कि वो अब होल्ड रखे और इरेक्शन वैसा मेंटेन रहेगा. ठीक है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप. मतलब टिपिकली होता क्या है कि मैं एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा समझते हैं कि होता क्या है. ठीक है. सेक्सुअल स्टिमुलेशन वी डिस्कस्ड, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू आया, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कैवर्नस नर्व जो एक लोकल सप्लाई है. अब ये लोकल सप्लाई कहाँ है, जो अभी हमने
पेनिस का शाफ्ट देखा। अब पेनिस के शाफ्ट में हर जगह पर अंदर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की लोकल सप्लाई होती है। तो उस सप्लाई में अब क्या हो रहा है कि कैवर्नस नर्व्स के पास सेंसरी सिस्टम आया कि नाउ देयर इज समथिंग विच इज फॉर फ्रॉम द स्मेल साइड और साइड अराउजल हो गया। तो नर्व सेंसेशन जो आते हैं, नर्व सेंसेशन आने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे एक्टिवेट होने से पहले ये क्या एसिटाइल कोलिनर्जिक पाथवे होता है ना। So this is acetyl cholinergic pathway. अब एसिटाइल कोलिनर्जिक पाथवे क्या करता है कि यहाँ पर एसिटाइल कोलिन में उससे पहले जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है आर्जिनिन। सो आर्जिनिन को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एक एंजाइम होता है। यूजुअली एक एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज होता है। Endothelial nitric oxide synthase is a calcium dependent this particular enzyme. ये क्या कर रहा है, आर्जिनिन को चेंज कर रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड में। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, जो अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं, जो अभी हमने पहले भी देखा, स्मूथ मसल्स में क्या करेगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है विच इज गुआनाइल साइक्लेज। सो गुआनाइल साइक्लेज जब एक्टिवेटेड होता है, दिस कन्वर्ट्स जीटीपी इनटू सीजीएमपी और फर्दर सीजीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है। सो एक प्रोटीन काइनेज एक ओवरऑल कैस्केड हमारा एक्टिवेट हो जाता है। दिस कैस्केड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर वट एवर इज हैपनिंग इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द पेनिस नाउ विच इज विद इन द कॉर्पस कैवर्नोसा। Now what you see CGMP से convert जो 5GMP में हो रहा है, this is PDE5 which is phosphodiesterase inhibitor। यहाँ पर जो phosphodiesterase जो एंजाइम है ना, इसको याद रखिएगा। I'll talk about this in a while. So phosphodiesterase 5 CGMP को कन्वर्ट कर रहा है 5GMP में, and then ये प्रोटीन काइनेज जो मैकेनिज्म शुरू हुआ कैस्केड का, उसकी वजह से हुआ रहा है कि इट इज डिक्रीजिंग द कैल्शियम and potassium. So ultimately there is sequestration of calcium which is happening, and this is leading to smooth muscle relaxation. So now if you remember, हुआ क्या, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, कैवर्नस पहुंचा, एसिटाइल कोलिनर्जिक पाथवे एंड द डोपामिनर्जिक पाथवेज एक्टिवेट हुए। आर्जिनिन इज अ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट। सो आर्जिनिन से एंडोथेलियल जो हमारा NOS है विच इज नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया। नाइट्रिक ऑक्साइड ने गुआनाइल साइक्लेज से फॉस्फोडाइस्ट्रेज के साथ प्रोटीन काइनेज सिस्टम एक्टिवेट हुआ, और वो प्रोटीन काइनेज सिस्टम ने अल्टीमेटली उसके बाद स्मूथ मसल रिलैक्सेशन किया। नाउ स्मूथ मसल रिलैक्स जब हुआ क्या, स्मूथ मसल रिलैक्स हुआ, जो हमने पहले की स्लाइड में भी देखा था। स्मूथ मसल रिलैक्स होने के बाद पेनिस एंगोज्ड हो गया और अब इरेक्शन है। सो इसके बाद अभी ये हमें समझना है कि एक बार जब इरेक्शन हो गया तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो वैसे अब ब्रेन के पास क्या सप्लाई जा रही है कि इरेक्शन हो गया, यू हैव गॉट अ फन ऑफ योर टाइम, नाउ द रिवर्स हैपेंस विच इज अभी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम होने का टाइम है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट होने का टाइम है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इफ यू रिमेंबर, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है इजैकुलेशन के लिए। ठीक है, सो अभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, एड्रेनर्जिक है, तो नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर जितने भी एड्रेनर्जिक पाथवेज हैं वो अब एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, सो एड्रेनर्जिक पाथवे में जहाँ जहाँ पर ये एड्रेनर्जिक के पाथवेज में रिसेप्टर्स होते हैं, इस पूरे पाथ में, ओके, इस पूरे पाथ में एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। सो अब सिंपैथेटिक सप्लाई एक्टिवेट हो चुकी है। सिंपैथेटिक सप्लाई क्या कर रही है, अब यहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, अभी यहाँ ये स्टोर है स्पर्म्स, अभी क्या हुआ, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया इस पूरे पाथवे पे, ये पूरे पाथवे पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, टक 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 टक, यहाँ से पेनिस, यहाँ से स्पर्म मूवमेंट शुरू होता है। ये मूवमेंट शुरू हो रहा है, ये मूवमेंट जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। देखो आप यहाँ से जैसे जैसे ये रेड लाइन चल रही है, यहाँ गया, यहाँ। सो दिस डक्ट जिसके थ्रू एपिडिडिमस से आगे जिस डक्ट के थ्रू जाता है स्पर्म ट्रैवल करता है, दैट इज नोन एज वास डेफरेंस। ओके, अभी वास डेफरेंस के बाद ये नीचे यहाँ आया और यहाँ पर स्टोर, थोड़ा सी देर के लिए स्टोर होता है, और यहाँ पर एक सेमिनल वेसिकल है, ये रेड वाला जो देख रहे हो आप, ये सेमिनल वेसिकल क्या है, यहाँ पर सीमन होता है। ठीक है, सीमन,
सो सीमेन प्लस जो स्पर्म नीचे से आए वो दोनों मिलते हैं एक जगह पर और उसको हम बोलते हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। सो ये जो है ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट है। अभी कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट ये जो ऑर्गन दिख रहा है ये प्रोस्टेट है, तो यहाँ से ट्रेवल करती है, यहाँ आती है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो ये जो पार्ट है ये प्रोस्टेटिक, मतलब यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट के अंदर होता है उसे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। अभी यहाँ पर भी रिसेप्टर्स होते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो होता क्या है कि जब ये एक्टिवेट होकर सिस्टम ट्रैवल कर रहा है, जो स्पर्म सीमन ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये वापस यूरेथ्रा में ना चले जाए, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में ना चले जाए। तो ये ब्लैडर है, इसमें ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ये ना इंस्पेक्टर होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है, वरना ये स्पर्म वापस अंदर ये ब्लैडर के अंदर ना चले जाए। सो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया और उसके बाद ये ट्रैवल करके फिर आगे चलते हैं, यहाँ से ट्रैवल करते हैं अगेन रिसेप्टर्स के थ्रू, टक 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 ये ट्रैवल कर रहे हैं, यू कैन सी ये ट्रैवल करके, एंड देन दिस इज फाइनली ejaculation happening here. So I think ये क्लियर है कि हमने देखा कि क्या हुआ, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम क्या है, एंड हाउ द ओवरऑल इरेक्शन इन द इजैकुलेशन साइकिल. So coming back to this slide, which is again as a stopper, or let's say the last slide. So you see smooth muscles में क्या हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में थी जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड था. ये क्या हुआ, यहाँ पर डायलेट हो गई मसल्स जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड था. और ब्लड वेसल का सप्लाई बढ़ गया अंदर, कैवर्नस आर्टरी ब्लड सप्लाई बहुत बढ़ गया, और ये जो बाहर की एमिसरी वेन्स हैं ये सब में ये कंप्रेस्ड हो गई, ये जितने भी एमिसरी वेन्स थी ये कंप्रेस हो गई ताकि अब खून होल्ड रहे, और इरेक्शन हुआ. इसके बाद इजैकुलेशन हो गया. राइट नाउ व्हेन द आफ्टर द इजैकुलेशन, अब इजैकुलेशन हो गया, इजैकुलेशन होने के बाद क्या होता है कि दोबारा से अभी क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया. तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और सिंपैथेटिक एक्टिवेशन के बाद जो इजैकुलेशन हुआ, नाउ अगेन ये सारी जो स्मूथ मसल्स हैं ये दोबारा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आती हैं, और साथ के साथ जितनी भी वेन्स है ये जो डीप डॉर्सल वेन थी और एमिसरी वेन्स थी साइड में, अब उसमें ब्लड वेसल्स, जो ब्लड है वो सारा ड्रेन हो जाता है. तो ये सारा ब्लड अब वापस वीनस सप्लाई के थ्रू वापस चला जाएगा, और वापस से पेनिस अपने फ्लैसिड स्टेट में आ जाएगा. ओके, सो इन द एंड, just to remember, sympathetic system is for ejaculation, parasympathetic system for erection. There is also a central pathway. Blood vessel supply is very important because erection, the whole pathway is regulated by this. In the mechanism of action, you remember कि arginine is a substrate. Arginine के बाद nitric oxide synthase, नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद प्रोटीन काइनेज सिस्टम एक्टिवेटेड होता है. सो अभी क्या है, इसीलिए जो हम आगे कुछ सेशंस में हम ट्रीटमेंट के बारे में जब बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, तो वहाँ पर समझाएंगे कि कैसे वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की ज़रूरत होती है. वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिसाइड करता है कौन सी मेडिसिन कब देनी है, और क्या क्या हमारे कारण हैं किस वजह से हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन को और कैसे उसे ट्रीट कर सकते हैं. आई होप दिस वाज हेल्पफुल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, और लेट्स से इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट एनीथिंग, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो. थैंक यू.